ठीक है. Okay. Discuss the key factors which determine the level of investment in current assets. First is nature of current assets कि fluctuating है, permanent है, वैसा. फिर और एक तो मैनेजमेंट का स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट कौन सा अप्रोच रखता है, उस हिसाब से. फिर अग्रेसिव अप्रोच तो शॉर्ट टर्म, कंजर्वेटिव तो short लॉन्ग term टर्म. conservative, हाँ. और इंडस्ट्री एवरेज, कि इंडस्ट्री क्या फॉलो कर रहा है Industry फॉर averages. कंपैरिजन पर्पसेस. एंड Type of nature of कॉम्पिटिटिव. business. हाँ, टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एंड कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी. थिंक काफी सारे बोल दिया अपन ने तो. हम्म. 4 मार्क्स के लिए एक बार पढ़ लेते हैं. हम्म. आंसर नीचे नीचे था. ऊपर ही था. नहीं, क्वेश्चन नंबर 269 है ना. तूने जो पेज नंबर टाइप किया था ना, वही पेज पे था. नहीं रे, 269 ये है. ब्लैक कंपनी. हम्म. बढ़िया. Black company. There are a number of factors that determine the level of investment in current assets, and their relative importance varies from company to company. Length of working capital. Oh, the working हम्म. capital cycle or operating cycle is the period of time between when a company settles its accounts payable and when it receives cash from its accounts receivable. Operating activities during this period need to be financed, and as operating period lengthens, आ the रही है बोली. amount of finance needed increases. Companies with comparatively longer operating cycles than others in the same industry sector will therefore require comparatively higher levels of investment in current assets. Terms of trade. These determine the period of credit extended to customers. Any discounts offered for early settlement or bulk purchases, and any penalties for late payment. A company whose terms of trade are more generous than another company in the same industry sector will therefore need a comparatively higher investment in current assets, right? Receivables का period अगर ज़्यादा होगा तो. Policy on level of investment in current assets. Even within the same industry sector, companies will have different policies regarding the level of investment in current assets, depending on their attitude to risk. A company with a comparatively conservative approach to level of investment in current assets would maintain higher level of inventory, offer more generous credit terms, and have higher level of cash in reserves than a company than a company with a comparatively aggressive approach. While the more aggressive approach would be profitable because of the lower investment in current assets, it would also be more risky. For example, in terms of running out of inventory in period of fluctuating demand, okay, of following or failing to have particular goods required by customers. Last में industry in which organizations operate. Another factor that influences the level of investment in current assets is the industry within which an organization operates. Some industries, such as aircraft construction, will have long operating cycles due to the length of time needed to manufacture those goods. Okay, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होगा जिसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा. यस. रिटेल कंपनीज को कम. ओके, तो ये है ये. Fine. Last one. Briefly discuss the ways in which factoring can assist the management of accounts receivable. Factoring is another organization that has expertise in uh, that sector, that is receivable sector. तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है. Mhm.
कंपनी को बैड डेट्स नहीं, अगर सपोज फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स है तो कंपनी को बैड डेट का स्ट्रेस नहीं रहता हम्म। है। उसको अलग से अपने कंपनी में सेल्स अकाउंट्स रिसीवेबल का एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप करने की जरूरत नहीं है। राइट। एंड उसका कैश ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो जाता है एज इट रिसीव्स द कैश इमीडिएटली, एंड उसका कैश ब्लॉक कम टाइम के लिए रहता है। परफेक्ट। इसमें से हेड्स नहीं बनाया, इसमें डायरेक्टली भी है। Factoring हम्म। invoices, sorry, factoring involves a company turning over हम्म। administration of its ledger to a factor, which is a हम्म। financial institution with expertise in this sector. The factor will assess the creditworthiness of new customers, record sales, send out statements, reminders, collect payments, identify late payments, and chase them for settlement, and take appropriate legal action to recover debts when necessary. सब मतलब बताया इन्होंने। नाइस, आंसर बड़ा हो जाता है। Factor will also offer finance to a company based on the invoices raised for companies for goods sold or services provided. This is usually up to 80% of the face value of invoices raised. The finance is repaid from settled invoices, with the balance being passed on to issuing company after deduction of a fee equivalent to an interest charge on the cash advanced. Perfect. If factoring the factor rather than the company will carry the cost of any bad debts. The factor rather than the company, हाँ वही 13 पॉइंट जो तूने बताया, that हम्म। arise on overdue accounts. Factoring without recourse therefore offers credit protection to the selling company, that is actually the client. Although the हम्म। factor's fees, a percentage of credit sales, will be comparatively higher than with non-recourse factoring to reflect the cost of insurance offered. Right. ठीक है, ये दोनों तो काफी सही थे, इजी थे, मेरे को लगता है। हम्म। अभी ये आता है, कैलकुलेट द साइज ऑफ ओवरड्राफ्ट फ्लैग को द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इट्स करंट एसेट्स। ओके। ठीक है, चलो। हम्म, हम्म, credit sales 4200, the consist of maintain account receivable. Current liabilities consist of accounts payable and overdraft with an average interest rate of 7%. Okay. Interest, the company gives 2 months credit to its customers and is allowed as a 2 months credit to the collection period.
On average, 1 month credit to trade cycle. Life and operating cycle is of 3 months. In cycle is of 3 months. 3 months. Months. Inventory. And inventory handling goods. Three building days will be payment periods are -1 month. Trading days is minus receivable plus number of inventory for 2 months. So, inventory holding days of sales into 5 12 30. Inventory column मिलेगा होगा 0. Inventory का होगा फिर
Payables, payments, payables मिल गए तो payable receivables मिल जाएगा फिर 700 का thank you so much receivables का amount आ जाएगा एटलीस्ट को कंपनी की समझ है period cost of long term financing government system trade payables मिल जाएंगे trade payables हो गया क्या तेरा नहीं, तेरा हो गया? कर रहा हूँ मैं भी पेबल पेमेंट पीरियड पे हूँ अच्छा। पीरियड पेबल प्रोसेस है यहाँ पे आ जाता है पेबल तो ये सेम कुछ नहीं पेबल
ठीक है, मेरे को हाफ तो आ गया। हम्म। मतलब मेरे को वो ये मिल गया, क्या बोलते हैं अपना, कैलकुलेट साइज ऑफ द ओवरड्राफ्ट। तो साइज ऑफ द ओवरड्राफ्ट तो आ गया मेरे को। ये साइज इस ऑफ द ओवरड्राफ्ट कैसे निकाल लिया तूने? मतलब अच्छा, वो पेबल्स और रिसीवेबल्स से जितना, नहीं, मतलब रिसीवेबल्स मैंने से जो अमाउंट है। मैंने एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लिया मैंने यहाँ पे, कुछ पे कुछ शेयर स्क्रीन पे तेरे को दिख रहा है क्या? हाँ। ये देख ले, मैंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया। मेरे को हम्म। इन्वेंट्री मिला, रिसीवेबल्स मिला, करंट लाया, फिर उनसे मैंने करंट एसेट्स में वो दो ही चीजें आती है, तो करंट रेशियो को यूज करके मैंने करंट लायबिलिटीज का टोटल फाइंड आउट किया। तो मेरे को टोटल आ गया। फिर मैंने ट्रेड पेएबल फाइंड आउट किया, इसमें से, सॉरी ये पेएबल्स है। तो मैंने पेएबल्स फाइंड आउट किया, तो ऑब्वियसली, और करंट लायबिलिटीज में भी खाली पेएबल्स और ओवरड्राफ्ट ही है, तो पेएबल्स का मेरे को वैल्यू मिलेगा, मेरे को ओवरड्राफ्ट का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ऐसा। 1 मिनट ऊपर जा। हम्म। इन्वेंट्री ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री का तूने ओवर इन्वेंट्री कैसा फाइंड किया? जो 2 मंथ्स आया, हाँ, इन्वेंट्री पेडिंग, राइट। राइट। हम्म। हाँ ठीक है, मैं अभी इन्वेंट्री ये कर रही हूँ, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ये मैं फाइंड कर रही हूँ। तूने बाकी के कुछ किए क्या आगे? दो भी है, वो किया है क्या? कौन सा दो? ये नेटवर्किंग नहीं कैपिटल नहीं और नहीं नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। नहीं नहीं, मैं इसी पे ही हूँ, ड्राफ्ट पे ही हूँ। मेरे को नेटवर्किंग कैपिटल नहीं समझ रहा, ठीक है तो आज the current liabilities consists of only trade payable and trade payables and overdraft. We found the value of total current assets with the help of current ratio and current assets. Then the value of payables from payables payment period. Thus, now the balancing figure is the value of overdraft. Cost of long-term finance for flat company. The financing the current assets. Cost of long finance B part, which is net working capital. Net working capital now. It's not there. और ट्रेड पेबल बैलेंस और इन्वेंट्री बैलेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं रे, तूने ट्रेड पेबल वुडन का, पेबल पेमेंट पीरियड इज 1 month, यस, एंड इन्वेंट्री इज 2 months.
इन्वेंट्री 2 मंथ कैसे है? 3 महीने। ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने का है, रिसीवेबल पेमेंट पीरियड इज 2 मंथ्स एंड पेबल पेमेंट पीरियड तो माइनस करती है, सो 1, तो रिसीवेबल माइनस पेबल इज 1 मंथ, बराबर है। अब तो यार ये 1 मंथ जो है वो तेरा पॉजिटिव 1 मंथ है, अब वो तेरा ओके। ट्रांसफर होगा ऑपरेटिंग में तो वो माइनस हो जाएगा, हाँ। ओके, तो बेसिकली 3+2 -1। 3+2, नहीं 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 नहीं, 3 3 -2 माइनस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन, प्लस वन हाँ। अब मेरे को आ गया, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मेरे हिसाब से द नेट वर्किंग कैपिटल is receivable payable, मेरे लिए नेट वर्किंग कैपिटल वुड बी दिस minus this, मुझे तो लगता है। वर्किंग कैपिटल मतलब प्लस लास्ट में आती है सी पार्ट विच इज टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग करेंगे, टोटल कॉस्ट इन द ये थोड़ा ट्रिकी है। हुआ तेरा। हाँ, 1 मिनट। तूने मुझे कल क्या बताया था? Ctrl+Alt+C। कंट्रोल सी, उसके बाद हम्म। कंट्रोल, जिधर तेरे को पेस्ट करना है विदाउट द फॉर्मूला, इट इज कंट्रोल हम्म। अल्ट वी, कंट्रोल अल्ट वी। ओके। इट इज एक्चुअली कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ओनली, बस बीच में एक बार अल्ट दबाना है वी के पहले, ऐसा तो वो वैल्यू के बिना आ जाता है। ओके। कल तेरे को देख के ऐसा मेरे को रियलाइज हुआ कि ओ मैं भी ऐसा ही चौंक गया रहूंगा जब मैंने पहली बार किया था। ऑफ कोर्स। पड़ गई थी। बहुत ही टाइम सेविंग चीज है ना ये। हाँ, तूने करंट लाइबिलिटीज, अब करंट असेट्स का टोटल क्या आया? 1015। परफेक्ट। एंड देन और करंट लाइबिलिटीज में पहले मैंने अकाउंट बराबर पेबल। किए, एक मिनट ना, सॉरी सर, मैंने पहले बराबर किया नहीं, पहले एक बार वो चेक कर लेता हूँ मैं, और पता चला मैं तेरे को ही गलत गाइड कर रहा हूँ, देन वो ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड जैसा हो जाएगा। हाँ, करंट एसेट्स इज 1015, देन करंट लायबिलिटीज इज, तेरे को मिल जाएगा ना फिर वो करंट हाँ, रेशियो फॉर्मूला कैसे। में डाल के, हाँ ठीक है, हाँ, ओके। 725 1.4। और 567। 567.5। हाँ परफेक्ट, राइट। सही है सही है। मेरा नेट वर्किंग कैपिटल मेरे को आया तो है, मैं चेक कर लेता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल मेरा। नहीं, ना नहीं है नेट वर्किंग कैपिटल आया।
तो वर्किंग कैपिटल अपना कैलकुलेशन में सबसे पहले आता है, रॉ मटेरियल का बैलेंस आ जाएगा, फिर पे, आई थिंक जो अपना कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। समझो तुम कोई गलती ये कर रहे हो, तो दूसरे इंसान को तुमको बताना चाहिए गलती से पहले या बाद में, वो व्हाट वुड यू प्रेफर? बाद में बता दे। ओके, परफेक्ट, तो कर लो। नहीं मैंने मतलब सेम मेरा मिस्टेक इसमें की थी। ये अमाउंट्स में गलती है क्या? नहीं 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 नहीं, अमाउंट सब सही है, ओवरड्राफ्ट तक एकदम सही है। सेम गलती अच्छा, मैंने की ओके। थी, इसलिए मैं खाली पूछ रहा था। हम्म। तो फाइनेंसिंग का करंट असेट ये कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा 60%। हम्म। हम्म। क्या आ रहा है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस? सॉरी, नेट वर्किंग कैपिटल क्या आ रहा है? 290। वाओ, आई एम सो रॉन्ग। मैंने भी सेम मिस्टेक की जो तुमने की होगी, कि तुमने पेबल्स माइनस किया रहेगा, इन्वेंट्री ऐड किया रहेगा, बट दैट इज हाँ हाँ ऑपोजिट। हाँ। नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वाओ। मैंने पहले ना, मैंने को यही आया था फॉर्मूला, बट देन आई वाज लाइक कि ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए आया है, इतना इजी उन लोगों ने पूछा रहेगा, क्योंकि ये वाला अरे मेरे लिए मुझे सबको तो मार्क है। स्ट्राइक ही नहीं हुआ, मैं भूल गई हूँ क्या, मैं सोचू कि नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुझे हम्म। स्ट्राइक भी नहीं किया। ये बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे, बेसिक कैलकुलेशन भूल चुकी हूँ मैं। फिर मेरे को लगा कि ठीक है चलो, 11% दिया हुआ तो अपन उसको लगा देंगे पूरा अपने करंट एसेट पे, और अपने को आंसर आ जाएगा। हम्म। लेकिन तूने मेरे को बताया था कि वो कंजर्वेटिव एग्रेसिव मैचिंग, तो मैं इसलिए मैं करंट एसेट पे रुक गया, कि मेरे को समझा नहीं कि कौन सा एसेट किस हमने क्या करना है सेट ऑफ, क्योंकि और पहली बात तो इन्होंने बताया भी नहीं है कि ये एग्रेसिव अप्रोच है या कंजर्वेटिव है। हम्म। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो ये हो अगर गया तेरा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम्म। एंड शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है, ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन करंट असेट्स को वी कैन कंपेयर विथ ओवरड्राफ्ट एंड, बट लॉन्ग टर्म असेट्स तो कुछ ऐसा खास दिया नहीं है। ओके। बड़े ऑफ फिगर को टोटल लॉन्ग कॉस्ट ऑफ टर्म से कंपेयर फाइनेंसिंग कर द ले। करंट असेट। क्या? बड़े फिगर को लॉन्ग टर्म से कंपेयर कर ले, छोटे फिगर को शॉर्ट टर्म से कंपेयर कर ले। मतलब तू बोल रहा है कि जो अपना इन्वेंटरीज और अकाउंट रिसीवेबल है दोनों पे अलग अलग रेट लगाओ। हम्म। ऐसा कहाँ दिया है कि लाइक एक पे नहीं कर सकते, दूसरे पे कम कर सकते हैं, वैसा। हम्म। बड़ा अगेन मैंने ये चैप्टर हम्म। नहीं किया है, तो आई थिंक कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर दिया है तो अपने को शायद लॉन्ग टर्म से करना है। ठीक है। बिकॉज अगर अपने को लॉन्ग टर्म रेट नहीं देते तो अपन अज्यूम ही करते कि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो डायरेक्टली शॉर्ट टर्म से कर लो। और व्हाट वी कैन डू इज, बिकॉज अपने को क्लियरली नहीं बोला है कि कौन सा मेथड से करना है, व्हाट वी कैन डू इज अपन करंट असेट्स विथ करंट शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन राइट अ नोट डाउन कि वी हैव अज्यूम्ड दैट द कंपनी फॉलोज मैचिंग कंसेप्ट। ओह नाइस। बिकॉज सेक्शन सी क्वेश्चन है, वी कैन पुट आवर assumptions। तो अपन ये भी डाल सकते हैं ना, कि अगर अपन 11-11% से ये कर ले मल्टीप्लाई, हम्म। और फिर 7-7 हम्म। परसेंट से मल्टीप्लाई कर ले, तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि कंपनी यूजेस कंजर्वेटिव अप्रोच, या कंपनी यूजेस एग्रेसिव अप्रोच इन दिस केस, ऐसा। हाँ, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज मच बट बेटर नो। जस्ट बिकॉज इन लोग ने लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से करना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं जरूरत होता तो उन लोगों को क्यों देते। ओके। आई डोंट नो नाउ। ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो चेक करेंगे अभी तो। अप्रोच
for investment in assets, then Current asset balance rate of, just one question to you. yes. Uh, Sometimes aggressive and matching can be used interchangeably. ना like यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि if a company uses aggressive slash matching approach because शॉर्ट टर्म हो रहा है तो मैचिंग भी और एग्रेसिव भी है दोनों साथ में है, सब बोल सकते हैं ना कि नहीं? नहीं, नहीं क्या ओ? मतलब अपन ने कहीं भी बुक में ऐसे पढ़ा तो नहीं कि मतलब यू कैन मिक्स एंड मैच द मेथड्स। इफ यू आर अग्रेसिव देन यू हैव टू गो विद दैट ओनली, मतलब तुमको हर चीज शॉर्ट टर्म में करना है। इफ यू आर कंजर्वेटिव, दैट जो तू बोल रहा है ना, दैट इज बेसिकली मैचिंग कंसेप्ट। कि मतलब तुम कुछ असेट्स हम्म। को शॉर्ट टर्म से करो, कुछ असेट्स को लॉन्ग टर्म से करो। जो तू बोल रहा है ना, दैट इज दिस ओनली, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली। ओके। मिक्स मैच करना इज मैचिंग कंसेप्ट। ठीक ठीक। आंसर देख लेते हैं इनका। इनको आंसर आया है 71,625। 71,625। एक मिनट। दे हैव मिसमैच, मतलब उन्होंने मैच किया है, सॉरी, बट दे हैव मैच्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे देन व्हाट आई वाज सेइंग। जो वर्किंग कैपिटल है इन लोगों ने वो लॉन्ग टर्म से किया है, और जो करंट असेट्स का टोटल है उसको इन लोगों ने ओवरड्राफ्ट पे लिया है। नहीं, एक सेकेंड। 56,7,500 इज अपना ओवरड्राफ्ट का अमाउंट। ओवरड्राफ्ट पे वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 60% का, वो ठीक है। नीचे आएगी तू तो उन्हें फाइनेंस कॉस्ट पूछा था क्या नीचे? नहीं, हाँ, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट भी फाइनेंसिंग। तो। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंस ओके ठीक है, क्या किया फाइनेंस इन कॉस्ट लोगों ने? पूछा था। नीचे आना थोड़ा। वही है, उसके बाद डी क्वेश्चन अच्छा, स्टार्ट होता इतना है। ही है, ओके, अच्छा अच्छा। तो दे व्हाट देव डन इज, ओके, तो नेटवर्किंग कैपिटल करंट एसेट, ओके, ये आ गया। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट, ओके। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 2,90,000, ओके। तो मतलब वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है उसके ऊपर इन लोगों ने डायरेक्टली 11% लगाया है। हम्म। मेक सेंस एक्चुअली। देख 60% का एक मिनट ना, इनको कितना आता है यहाँ पे? ओवरड्राफ्ट अपना अपने को मिला था इतना, उसके ऊपर इन्होंने 7% चार्ज किया, कंसिडर्ड 11% हम्म। आएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के साथ क्यों किया है लेकिन ये क्या किया है वर्किंग टू लॉन्ग टर्म लैख फाइनेंसिंग कॉस्ट? अरे तो तेरे पास, हाउ कैन यू से दैट तुझे करंट असेट्स, तू सिर्फ करंट असेट्स पे हाउ आर वी चार्जिंग 7 पर 11%? करंट असेट्स में अपना पैसा ब्लॉक हो रहा है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, करंट असेट्स में पैसा ब्लॉक हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज में, एक सेकेंड। करंट असेट्स इज बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में सिर्फ पैसा आ रहा है एंड, एक मिनट, नो नो नो, आई थिंक बैलेंस करने के लिए इन लोग ने लिया है, क्योंकि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो नेट अपने को इतना ही अमाउंट लगेगा ना बिजनेस आई थिंक चलाने के लिए। आई थिंक व्हाट दे आर अज्यूमिंग इज कि ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है, ये सारे एसेट्स को पेबल्स के बाद मतलब पेबल्स देने के बाद, रिसीवेबल्स कलेक्ट करने के बाद इतना पैसा बच रहा है, इस पैसे को हम आगे चल के लाइफ मतलब यूज करेंगे इन द लॉन्ग रन। ये अज्यूम करके हाँ। चल रहे हैं क्योंकि ओवरड्राफ्ट का ऑलरेडी दिया गया है शॉर्ट टर्म, तो ये वापस उस चीज को हम्म। शॉर्ट टर्म में नहीं डाल रहे हैं। तो फिर आ जाता है आंसर, बट ये क्लिक होगा कि नहीं एग्जाम में वो डाउट है। हम्म। ठीक है, मतलब अभी क्या ही कर। ठीक है।
तेरा हो जाए तो बताना। हम्म, ये मेरा आंसर परसेंटेज में क्यों है? हम्म। ठीक है। यस। Black company wishes to minimize its inventory cost. Annual demand for raw material costing 12 per unit is 60,000 per year. Inventory management cost for raw materials are okay. Ordering cost दिया, holding cost दिया है. The supplier of this raw material has offered a bulk purchase discount of 1% for orders of 10,000 units or more. If bulk purchase orders are made regularly, it is expected that the holding cost of the raw material will decrease to 2%. Sorry, holding cost will decrease to increase. Sorry, मैं decrease क्यों पढ़ रहा हूँ? Increase to 2 per unit. ठीक है, ये तो सही समझ, ये क्यों का समझ. Demand COPH. COD on CS. अच्छा। Power Q. रूट कैसे निकालना है इसमें अपने को? हाँ, तेरे को वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख ले. एक सेकेंड ना। हाँ बता। ये देख, पावर है उसका नाम. पावर. You open the bracket, then you select the cell, and then the power which हम्म। you want, like 1/2, 1/3, 1/4, जो भी तेरे को चाहिए वो. अच्छा ओके। ठीक है. फिर ठीक है, अभी तो हर एक चीज ढूंढनी है शायद. अच्छा, इसको हम बोलते हैं क्या है, मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट या टोटल होल्डिंग कॉस्ट नाम होता है ना खाली इन सब चीजों का. क्या लाइक मतलब? when we multiply CH by एवरेज इन्वेंट्री, एक हम्म। पीरियड में एवरेज, तो उसको नाम क्या होता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट ना. यस। ओके.
Total holding cost. So formula is total holding cost is equal to H into average inventory the total inventory cost. Total is equal to plus this plus this. This is my cost. If discount is taken away, लगाने क्या यही मैं अगर कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया तो कंट्रोल टू कंट्रोल वी count is taken. If discount is taken, in CH will increase to 2 उन्होंने बोला था quantity demanded will be 10,000 quantity demanded will be 10,000 so quantity demanded would be 10,000 units line discount फिर 2% का डिस्काउंट दिया तो कैसा चेंज हुआ है पहले डिमांड 1% डिस्काउंट है 1% डिस्काउंट है
units or more if bulk purchase order are made regularly, represent the annual loading will reduce to 2 units. So summary, if no discount is taken, if discount is taken, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, loss. The offer of this bulk purchase discount should not be taken unless it leading to loss. हो गया तेरा नहीं, पूरी मुझे कुछ तो गंदा ही आंसर आ रहा है। तुमने इफ नो डिस्काउंट इज टेकन वाला तो बराबर किया रहेगा ना नहीं, मैंने डिस्काउंट इज टेकन का टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है अगर डिस्काउंट लिया तो? 7,22,836 तुम पहले डिस्काउंट के साथ कर लेते सॉरी विदाउट डिस्काउंट कर लेते तो फिर उसको कॉपी पेस्ट करना था शायद मैंने को भी नहीं पता मैंने सही किया कि नहीं बट टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी, अच्छा, ओके, ओके, सो दैट विल बी दिस परचेज प्राइस इंटू, इन्वेस्टमेंट हम्म, डिस्काउंट तो ये है बल्क परचेसिंग तो ये है ईओपी अप्रोच रिजल्ट इन स्लाइटली लोअर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट तो वो 106 हो गया परफेक्ट तो 3 का लॉस हो रहा है तो वो लेने की कोई जरूरत नहीं है well, amount of quantity determine whether accepting the discount or